Hello everyone, welcome to Sarvocha IAS. If you are preparing for UPSC or any state civil services examination, then you come to the right place. Here you will get all the resources that is required for smooth preparation of this examination. तो ये आपको सारे के सारे रिसोर्सेज, फ्री लेक्चर्स, फ्री स्टडी मटेरियल्स, ये सब कुछ आपको विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी फी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। ये उन सारे बच्चों के लिए हैं, उन सारे मेरे प्यारे भाइयों के लिए हैं, दोस्तों के लिए हैं, जो इस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका एक फाइनेंशियल हर्डल, उनका इकोनॉमिक जो हर्डल है, वो कहीं ना कहीं एक ऑब्स्टेकल बन रहा है उनके इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। तो बेसिक एजेंडा हमारा यही है कि जो नीडफुल हैं उन तक हमारी ये लेक्चर पहुँचे और वो अपनी प्रिपरेशन को सही तरीके से कर पाएँ बिना किसी चैलेंजेस के। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्यारे भाइयों का हेल्प हो सके, यही मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बिना किसी टाइम वेस्टेज के लेट्स कम टू द टॉपिक। नाउ टुडे लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया टुडे? हम क्यों बात करते हैं, है ना? दिस इज द नीति आयोग रिपोर्ट रिगार्डिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. And in this report, Niti Aayog suggested that there are total four pillars, there are total four areas, four sectors which can potentially help India emerge as a global manufacturing hub. But my first question is, why are we talking about manufacturing in India? Suppose India wants to become developed. हमारा एक एजेंडा है, आप जानते हैं कि हमें विकसित भारत बनना है. By 2047, we wanted to be a developed country. By 2047, we wanted to be a developed country. But fairly, simply having a large services, simply having a large GDP does not mean that we become developed by 2047. How is it possible? हमारे सेक्टर में, हमारे इकोनॉमी में आप जानते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द contribution goes to service sector. Service sector itself accounts for more than 50% of GDP growth, right? 50% जो है सिर्फ और सिर्फ contribution service sector का है. And by having a service sector, because most of the people are not able to do work in service sector, they are not that much capable, right? They do not have that much financial capabilities to take some technical degrees, and due to all these constraints they are not able to work in service sector, right? एंड दैट्स वाई ऑन दिस बेसिस ओनली कि सर्विस सेक्टर हमारे पास बढ़िया है, हम अपने आप को विकसित भारत नहीं बना सकते, हमें मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़िया बनाना पड़ेगा. वी नीड अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग बेस. एंड रिसेंटली just now I have told you that Niti Aayog identified that is there four major sectors. What is these four major sectors that can be helpful for the creation or for making India a global manufacturing hub? That is suggested is chemical industry, that is textiles, okay, that is telecom, that is networking equipment, and another is solar PV. So these all are essential thing. These all are the sectors which can make India a global manufacturing hub. Now first start with the basic question, what is manufacturing? ये है क्या? See, manufacturing is basically a process of converting inputs, whatever raw materials that you have, using labor, using capital, using technology. You just convert this raw material, you just convert this input via manufacturing process to a finished or intermediate good. For example, for example, suppose, suppose there is an iron ore, and this iron ore is converted into steel. This steel has much higher value than iron, right? आप जानते हैं स्टील कितना महंगा होता है.
और लोग प्रेफर करते हैं कि लोहे की बर्तन में खाना बना लेंगे। क्यों? क्योंकि लोहा सस्ता है, हम जल्दी खरीद सकते हैं, और स्टील काफ़ी महंगा हो जाता है। क्यों महंगा हुआ? क्योंकि आपने लोहा को, आयरन ओर को आपने मैन्युफैक्चरिंग करके आपने फाइनल प्रोडक्ट जो कि स्टील है उसमें आपने कन्वर्ट किया और आपने उसका वैल्यू एडिशन किया उसमें। कॉटन, रॉ कॉटन का कोई वैल्यू नहीं, बहुत कम है, पर उससे जो आप टेक्सटाइल बनाते हैं और ब्रांडिंग करते हैं, उस ब्रांडिंग के बाद वो टेक्सटाइल है ना काफ़ी महंगा हो जाता है। लेवाई स्ट्रॉस है ना, जीन्स का कंपनी ब्रांड, जैक एंड जॉन्स। तो ये सब जो है क्या है, आप सेम टेक्सटाइल्स को, सेम जो है रॉ मटेरियल को यूज़ करके एक ब्रांडिंग ब्रांडिंग करके आप बहुत महंगा बनाते रहे। सिलिकॉन, जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स बना लेते हैं तो बढ़िया हो जाता है। पॉलीसिलिकॉन, उससे आप सोलर मॉड्यूल बना लेते हैं, और ये फिनिश्ड गुड का कीमत बढ़ जाता है सर। सो मैन्युफैक्चरिंग creates economic value by transforming inputs into higher value products, and this higher value products is important here. Now, why manufacturing is important? First thing, we have studied that what is manufacturing, why manufacturing is important. First thing, for any economy, it creates employment. किसी भी कंपनी आप इकोनॉमी की बात करेंगे तो फर्स्ट थिंग इज एम्प्लॉयमेंट। यू नो, इंडिया हैज़ अ वेरी लार्ज वर्क फोर्स इन आवर कंट्री, जो बेरोजगार हैं, जो चाहते हैं कि हमें नौकरियां मिले, और नौकरी को लेकर के ही प्रोटेस्ट चल रहा है हर जगह। तो इंडिया हैज़ वेरी लार्ज वर्क फोर्स, देर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर सर्चिंग फॉर द वर्क, बट दे आर नॉट गेटिंग इमीडिएटली अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। अब सीधी सी बात है ना, आप अगर आईटी सेक्टर में काम करने जाएंगे तो आपको आईटी सेक्टर में काम करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज आना चाहिए, आपको कोडिंग्स वगैरह आनी चाहिए, आपको डेटा के बारे में समझना आना चाहिए, और ये टेक्निकलिटीज़ बहुत कम लोगों के पास है, ये लग्जरी बहुत कम लोगों के पास है। और जब ये एक लग्जरी है तो सोचिए कि जिनके पास पैसा नहीं है और जो नॉर्मल हल्का फुल्का स्किल है या फिर सेमी स्किल्ड है या फिर जिनके पास स्किल नहीं है, क्या वो सर्विस सेक्टर में जॉब कर पाएंगे? जिनके पास सेमी स्किल है वो अपना फिजिकल स्किल के बेसिस पे, फिजिकल स्ट्रेंथ के बेसिस पे कोई भी काम कर सकते हैं, और इन्हें काम कहाँ मिलेगा? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो है एक तरीके से देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्रिएट करता है, और जो स्किल्ड हैं, सेमी स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड पर्सनस हैं, दिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एब्जॉर्ब ऑल दीज बेरोजगार्स, राइट। सेकेंड इज स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोडक्टिविटी एंड एक्सपोर्ट्स, है ना। हम जो है प्रोडक्टिविटी चाहते हैं अपने कंट्री में, हम सिर्फ इंडिया के लिए प्रोडक्शन नहीं करना चाहते। वी डू नॉट वांट टू बिकम और रिमेन मेक इन इंडिया, हम जो है मेक फॉर द वर्ल्ड बनना चाहते हैं, है ना। हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए बनेंगे तो उससे क्या होगा कि हम खुद ही कमाएं और खुद ही खाएं और ख़त्म कर लिए, तो ये तो फायदेमंद नहीं है ना। तो हम इतना बनाएंगे कि हम देश विदेशों में सप्लाई करेंगे, है ना, तब जाकर के जो है आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। सेकेंड इज प्रोडक्टिविटी। वी वांट workers to gradually move from low productive activities towards high productive industrial activities, because if there is no industrial sector, if there is no manufacturing base in our country, then most of the people will be involved in agriculture sector, and that is very low productivity sector. एग्रीकल्चर जो है वहाँ पे लोगों का फ़ायदा नहीं होता ज़्यादा। सो एग्रीकल्चर में अगर इन्वॉल्व होंगे आप तो आपके पास लो प्रोडक्टिविटी है सर, है ना, आपके पास खाने के लिए पैसा उतना ज़्यादा आएगा नहीं। तो दैट्स वाई मैन्युफैक्चरिंग इज इम्पोर्टेंट। फोर्थ वन इज टेक्नोलॉजी, राइट। फोर्थ वन इज इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी। अ स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम रिक्वायर्स engineering, it requires designing, it requires research and development, right? It requires
modern engineering. It requires innovations, right? And when we apply all these things, research and development, engineering, innovations, then finally, by applying all these things, manufacturing will start contributing to our strategic economy by reducing excessive dependence on foreign supply chains. So that's why manufacturing sector is important. Now, what is manufacturing status? इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, व्हाट इज इट्स स्टेटस? यू नो, अभी का इंडिया का पोजीशन आपको पता है, एंड इंडिया हैज़ डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज. We are competitive in sectors like automobiles. We are competitive in sectors like pharmaceuticals, chemicals, textiles, steels, electronics. We are competitive. So it would be strong to say that India has no manufacturing base. हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग बेस है, बट द रियल इशू इज समथिंग डिफरेंट. द डेप्थ, राइट, द स्किल, the technological intensity of these manufacturing sectors, these things needs to be improved. है ना? आप इस बात को समझिए ना सर. हमारे पास डोमेस्टिक सेक्टर तो है, हम कम्पिटेटिव भी हैं, हमारे पास यंग वर्क फोर्स भी है, और दीज सेक्टर्स हैव बीन इम्प्रूविंग सिंस रिसेंट पास्ट. पिछले कुछ सालों में हमें ये दिखा है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 12% की रफ्तार से बढ़ रहा है. लेकिन इसमें जो चैलेंजेस हैं कि जीडीपी में इनका शेयर काफ़ी कम है सर. 15% माना जाता है कि ये इनका शेयर जो है ग्रॉस वैल्यू एडिशन में है. सर्विस सेक्टर आज भी हमारा डोमिनेटेड है. आज भी लो वैल्यू एडिशन इन सेलेक्टेड सेगमेंट्स, हेवी इम्पोर्ट डिपेंडेंस इन क्रिटिकल इनपुट्स. हम जो हैं ज़्यादातर काम असेंबलीज में कर रहे हैं, असेंबलेज कर रहे हैं. दूसरे कंट्रीज से जो भी कंपोनेंट है उसे हम इंपोर्ट करते हैं, उसका असेंबल करते हैं, और फिर हम मेक इन इंडिया कहते हैं कि वी प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री द फाइनल प्रोडक्ट. और इसके सामने सर्विस सेक्टर हैव एक्सपेंडेड मच फास्टर, राइट. सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द स्टेटस contemporary status of manufacturing industry in today's time, right? The core problem, assembly versus deep manufacturing. This brings us to one of the most important concepts. Manufacturing is not simply assembling, है ना? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये नहीं है कि आप असेंबल करके चीज़ों को दे रहे हैं. सपोज द मोबाइल फोन इज असेंबल इन इंडिया. इट माइट बी पॉसिबल दैट द डिस्प्ले ऑफ दैट मोबाइल फोन, that the semiconductor that is being used in that mobile phone and the camera module of that mobile phone, ये सब कुछ हम दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करके अपने कंट्री में ला करके इसको असेंबल किए और फिनिश्ड गुड में बनाए और हम भेज दिए. तो ये तरीका सो थोड़ी सही है. तो क्या हम इसे कहेंगे कि ये जो मोबाइल फ़ोन है इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ? हमें पूछना चाहिए ना इसमें ये सवाल कि हाउ मच वैल्यू was actually created in India by assembling those products, by assembling those components. We have very limited role in GVA. We have very limited role in GDP by assembling those products, by assembling those components. So this is the current problem that India is facing. So therefore, India wants to move from assembly towards complete value chains. तो इसीलिए हमारा जो है हमारा जो मॉडल है ना, वो हम असेंबली से हट करके कंप्लीट वैल्यू चेन बनाना चाहते हैं. और कंप्लीट वैल्यू चेन कहने का मतलब कंपोनेंट भी आप खुद बनाइए, ठीक है, असेंबल भी आप खुद कीजिए, और फाइनल प्रोडक्ट भी आप खुद बनाइए. तो डिजायर्ड मॉडल हमारा ये है कि रॉ मटेरियल तैयार कीजिए, कंपोनेंट खुद बनाइए, टेक्नोलॉजी आपकी खुद की होनी चाहिए, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, आपका डिजाइनिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आपका अपना हो, आप डीप मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वॉल्व हों, और तब जा कर के आप ग्लोबली अपने प्रोडक्ट को इन्वेस्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तब जा कर के आपका डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन का रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड लेवल और काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा.
rather than rather than importing components from different countries, assemble here and then after export. यहाँ पे इसकी वैल्यूडेशन बहुत कम है, बहुत कम है। और यहाँ पर जब कंपोनेंट ही आप खुद बना रहे हैं, सब कुछ आप खुद बना रहे हैं, रिसर्च डेवलपमेंट भी आप खुद कर रहे हैं, डिजाइनिंग भी खुद कर रहे हैं, तब जाकर के एक्सपोर्ट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं दिखेगा। बट देर आर सम चैलेंजेस रिगार्डिंग growth of manufacturing sector. Why this thing not happening in our country? First is logistics. There is very high logistic costs, fragmented MSMEs, right, and limited economic of scale hamper global competitiveness. So first is logistics can be considered as an obstacle in the growth of manufacturing sector. क्योंकि कहीं भी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सीधी सी बात है कि ज़रूरी नहीं कि आप जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बेस बना रहे हों वहाँ पे आपके लिए रॉ मटेरियल वहीं, आप इतने खुशकिस्मत आदमी तो है नहीं, है ना, कि आप जो है मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाए और वहीं पे आपको रॉ मटेरियल भी मिल गया, वहीं पे आपको पानी भी मिल गया, वहीं पे आपको दुनिया का तमाम चीज़ मिल गया जो आपको चाहिए। वैसे तो फिर हर आदमी राजा हो जाएगा, है ना। तो ये जो है, और ये रॉ मटेरियल आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे, दूसरे रीजन से अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस पर ये रॉ मटेरियल लाने के लिए आपको चाहिए क्या, रास्ता। आपको चाहिए रास्ता, और रास्ते पे चलने वाली गाड़ी का खर्च जो है वो कम होना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी आपका एम है, नहीं तो फिर आप लॉस में आप क्यों समाज सेवा करेंगे भाई। किसी भी प्राइवेट कंपनी का ये मकसद होता ही नहीं है कि वो समाज सेवा करे, उसका मकसद है कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट हम अर्न कर लें। और प्रॉफिट आप तभी अर्न कर पाएंगे जब आप कॉस्ट कटिंग करेंगे, और कॉस्ट कटिंग करने के लिए आपको लॉजिस्टिक का कॉस्ट कम होना चाहिए। लेकिन हमारे कंट्री में क्या है ना, लॉजिस्टिक का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम छोटे लेवल पे बात करें एमएसएमई की, आपको पता है एमएसएमई क्या है। ये अगर एमएसएमई की बात करें तो एमएसएमई में भी आपको फ्रेगमेंटेड एमएसएमई देखने के लिए मिलेंगे, बहुत छोटे छोटे लेवल पे। और एमएसएमई अगर ज़्यादा टर्नओवर हो भी रहा है उसका तो लोग उसे दिखाना नहीं चाहते हैं, और ड्वार्फ एमएसएमई कहा जाता है उसे, ठीक है। द रीज़न इज कि उसमें बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं, उसका एक अलग टॉपिक है जिसको मैं बता दूंगा। देयर इज अनदर थिंग दैट इज स्किल्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देयर इज सिग्निफिकेंट स्किल गैप इन आवर कंट्री। देयर इज लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट आर not willing to invest in research and development. Private companies are not willing to invest in research and development. Why? Because of because of certain challenges, right? So all these things require a large workforce that is skilled, that is skilled according to the required conditions of the market economy. But industry needs these skills, and these skills need to be provided by somebody, right? There is research and development. If you invest in research and development, then your productivity will be increased. So these things are the important bottleneck in the growth of manufacturing sector. Third is GVC integration. ये जो है ग्रॉस वैल्यू चेन जो है ना, इसमें इंटीग्रेशन कैसे होगा हमारा। इम्पोर्ट डिपेंडेंस इन क्रिटिकल अप स्ट्रीम सेगमेंट्स एंड वीक integration with global manufacturing networks. So there is very limited role in our global supply chain. There is very limited role in GVC integration. And due to all these things, we are not able to make our country, make our manufacturing sector bigger. Right? Comes to the next part, that is recent macro trends regarding all these developments. You know, the situation is changing. India has increasingly adopted a more targeted manufacturing strategy. We have seen that PLI approach. हमने देखा है ना, production linked incentive approach, where we incentivize those companies who are involved in production. We want to promote certain materials
सर कुछ गुड्स को हम प्रमोट करना चाहते हैं, कुछ सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ सेक्टर्स को हम प्रमोट करना चाहते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है, और उसे प्रमोट करने के लिए हमें इंसेंटिव प्रोवाइड करना पड़ेगा कंपनीज को, और हम तभी प्रोवाइड कर सकते हैं जब सरकार उसे सब्सिडी दे, टैक्स इंसेंटिव दे, बहुत सारी चीज़ दे, है ना। तो ये पीएलआई भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। हम इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, हम मोबाइल को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों में हमारा काफ़ी वैसे इम्प्रूवमेंट हुआ है ना। सेमीकंडक्टर अभी का रिक्वायरमेंट है, अभी कंटेम्प्रेरी टाइम का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के बिना आप ना तो मेमोरी बना सकते हैं ना ईवी बना सकते हैं। तो अभी का जो समय है, इस टाइम में इन सारी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों में हमारा ग्रोथ हुआ है, लेकिन और ज़्यादा ग्रोथ होने की ज़रूरत है। ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें हमें एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग करना है। सो ऑल दिस थिंग्स आर टुडेज डिमांड. What is China plus one global shift here? While मैन्युफैक्चरिंग, आप जो है कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वो आपके कंट्री के लिए तो हो ही, लेकिन साथ ही साथ आप दूसरे कंट्री के लिए भी बनाएं, दूसरे कंट्री के साथ भी इंगेज करें अपने आप को. दैट इज कॉल्ड चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी. और यही चाइना इस स्ट्रेटेजी को ही यूज़ करता है कि वो अपने लिए तो बनाता ही है, मैन्युफैक्चरिंग करता ही है, लेकिन साथ ही साथ दूसरे कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट करता है और कहीं ना कहीं उन्हें भी अपने ऊपर डिपेंड रखता है. तो सीधी सी बात है ना, आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बना रहे हैं, पर खुद ही बनाया और खुद ही खा लिया तो कहानी ख़त्म है. फिर बनाइए, दूसरों को भी खिलाइए, तब तो जाकर के पैसा मिलेगा. तो दिस आर द recent macro trends. And earlier we had a focus of make in India, but now we shifted our focus from make in India to make for the world. अब हम देश विदेश के लिए बनाएंगे. अब यहाँ से आ जाता है सर वही न्यूज़ कि नीति आयोग क्या है ना. आप जानते हैं नीति आयोग क्या है. प्लानिंग व्लानिंग करता है, गवर्नमेंट का एक थिंक टैंक है जिसका काम है सरकार को सजेशन एंड रिकमेंडेशंस देना. And the important thing about this Niti Aayog report is it asks a more specific question. Which sectors can actually help India become globally competitive? कौन सा सेक्टर है जो इंडिया को ग्लोबली कम्पिटिटिव बना सकता है? And this report evaluates sectors using factors such as market attractiveness. है ना, मार्केट पोटेंशियल किसी भी सेक्टर का क्या है? What is their strategic importance? What technological readiness they have, what are raw materials that they depend on, what is their global trade and value chain opportunities, and specific policy requirements. On the basis of all these evaluation criteria, Niti Aayog recommended that these are the sectors which can make India a globally manufacturing hub, which can make India manufacturing competitiveness at the global market, right? फर्स्ट इज केमिकल. अब केमिकल इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं और यहाँ से हम लोग केमिकल इंडस्ट्री को देखेंगे. सबसे पहले अभी जो स्टेटस है केमिकल इंडस्ट्री का, वो 3 to 3.5% ऑफ द ग्लोबल मार्केट. हमारा रैंक 6th है ग्लोबली. बट देयर इज प्रॉब्लम. इम्पोर्ट डिपेंडेंस इन हाई वैल्यू इनपुट्स, हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड स्लो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन. हमारे कंट्री में केमिकल इंडस्ट्री को हम प्रमोट तो करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि हम उस प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं कर पा रहे हैं. द रीज़न इज़ कि इसमें जो भी हर्डल्स, जो भी चैलेंजेस है, पहली चीज़ तो एक क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए आपको उसमें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका केमिकल प्रोडक्ट वेस्टेज ना हो. बहुत जगह इन सारी चीज़ों का यूज़ होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र बनाना हो, उसके लिए केमिकल का यूज, फार्मास्यूटिकल में इसका यूज होगा, केमिकल्स का यूज. बट दिक्कत यहाँ पे ये है ना कि हम हाई वैल्यू केमिकल्स के लिए अभी भी दूसरे देशों पे डिपेंडेंट हैं, और अपने कंट्री में ला कर के हम फाइनल केमिकल प्रोडक्ट बनाते हैं, जिससे हमारा कहीं ना कहीं ग्लोबल वैल्यू चेन, हमारा कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन में बहुत ही लिमिटेड रोल हो जाता है.
हम जो है सब कुछ देश विदेशों से खरीद करके अपने घर में फाइनल बनाएं और उसके बाद फिर हम बेचें, तो उसमें कहीं ना कहीं भारत की बहुत कम फायदा है। तो ये एक दिक्कत आ जाती है। जस्ट ट्राई टू इमेजिन हियर दैट ए केमिकल कंपनी प्रोड्यूसिंग ए फाइनल प्रोडक्ट्स इन इंडिया बट इम्पोर्टिंग important raw materials, and that limits domestic value addition and makes the industry vulnerable to global supply disruptions. If anyhow this chemical industry जिस पे डिपेंडेंट है जिस कंट्रीज पे, if anyhow in future there might be some conflict with those countries, there might be some violent situations nearby those areas, then it disrupt global supply chain, and due to this global supply chain this chemical industry becomes vulnerable. They're not able to continue their manufacturing sector एम, है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं। सो देयरफॉर नीति आयोग रिकमेंड्स दैट integrated chemical hubs, shared infrastructure, pipeline networks, and OPEX support, targeted financial system as well. So all these things could help chemical industry, chemical manufacturing to grow. It will build deeper chemical value chains in India. So these are the way forward that Niti Aayog suggested. Comes to the next sector that Niti Aayog recommended for making India a global manufacturing hub, that is textile sector. आपको पता है टेक्सटाइल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टेक्सटाइल सेक्टर में इसका जो स्टेटस है हमारे जीडीपी में भी 2% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ग्लोबल वैल्यू एडिशन जो है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, उसमें 11% इसका कंट्रीब्यूशन है। 9% मर्केंडाइज एक्सपोर्ट भी करता है ये। बट देयर इज ए प्रॉब्लम, देयर कॉटन हैवी प्रोडक्शन, हमारे कंट्री में कॉटन हैवी प्रोडक्शन है, पर विदेशों को चाहिए लोगों का जो नीड है ना वो शिफ्ट हो रहा है कॉटन वाला नहीं, वो टेक्निकली जो नया तरीके का फाइबर है उस पर लोगों का शिफ्ट हो रहा है। वो चाहते हैं लोग मैनमेड फाइबर, टेक्निकल टेक्सटाइल्स। अब कॉटन वॉटन का नहीं चाहते हैं अब, है ना। तो वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन कॉटन हैवी प्रोडक्शन, फ्रैगमेंटेड प्रोसेसिंग। हमारे कंट्री में क्या है ना, आप जो है अगर एक जगह यार्न प्रोड्यूस हो रहा है तो दूसरी जगह उस जो है उसकी पेंटिंग हो रही है, कलरिंग ऑफ दैट पार्टिकुलर, तीसरी जगह उसकी वीविंग हो रही है, सिलाई बुनाई, चौथी जगह। और इस तरीके से आप लॉजिस्टिक्स में ही इतना खर्च कर देते हैं कि आपका कोई बेनिफिट ही नहीं निकल पाता। आप एक तरीके से इंटीग्रेटेड बनाइए ना, एक ही जगह जहाँ पे आपका प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पे आप पेंटिंग वगैरह सब कुछ कीजिए। तो फ्रेगमेंटेड प्रोसेसिंग है इसका। मार्केट एक्सेस डिसएडवांटेज, अब जहाँ जहाँ ये है वहाँ पे मार्केट एक्सेस है नहीं। अब सीधी सी बात है ना, यूपी के किसी लैंडलॉक्ड बहुत अंदर के क्षेत्र में आपने एक वीविंग का काम शुरू किया, सिलाई बुनाई का। अब सिलाई बुनाई तो आपने कर लिया, कलरिंग के लिए आपको भेजना पड़ेगा कर्नाटक, कर्नाटक से कलरिंग होगा, पेंटिंग होगा, फिर ब्रांडिंग के लिए कहीं और भेजा आपने, वहाँ से भेजने के बाद फिर जाकर कोस्टल एरिया में भेजा आपने गुजरात, और गुजरात से जाकर के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे सही होगा? Therefore, India needs technology upgradation in all these things: large scale production, integrated processing, better capabilities, deeper integration with ग्लोबल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। ये सब कुछ हमें चाहिए। हमें बेटर कॉटन प्रोडक्टिविटी चाहिए ना, हमें एमएफएफ इकोसिस्टम चाहिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, लार्ज प्रोडक्शन यूनिट्स, and we need to involve in free trade agreements with neighboring countries as well as other countries so that हम जो है easily अपना इस टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकें, है ना। Come to the next important sector, that is telecom and marketing, telecom and networking. India is one of the world's largest telecom markets, but we have also enormous consumer base, but there is a contradiction. India is a huge consumer of telecom technology, but its domestic production of high value telecom equipment is still limited, especially in advanced 4G and 5G equipment.
Localizations needs to increase, especially in 4G and 5G equipment. Localizations needs to increase. So the objective is simple. On the one hand, there is consumer, बीच में producer, और finally exporter. And that's why नीति आयोग recommends localization incentives. नीति आयोग को किसी भी लोकल जगह पे अगर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज ये वगैरह कंपोनेंट बनाया जा रहा है तो वहाँ पे लोकलाइजेशन इंसेंटिव्स देना चाहिए. इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, इंडियन फर्म पार्टनरशिप्स, सो ऑल दीज थिंग्स आर सजेशंस ऑफ नीति आयोग. कम्स टू द सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है ना, लगाएंगे बिजली बचाएंगे, लेकिन लगाने के लिए आपको लेना पड़ेगा लोन. लोन लीजिए, ईएमआई भरिए, और उसके बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी का फ़ायदा उठाइए. लेकिन बिजली चलेगा तभी जब तक रहेगा, मतलब सोलर पावर चलेगा तभी जब तक रहेगा बिजली, और बिजली ख़त्म, एनर्जी ख़त्म, सोलर काम करना बंद, है ना. इस तरीके से हम अपने आप को इंक्रीज कर रहे हैं. इंडिया इज रैपिडली इंक्रीजिंग दिस सोलर पावर कैपेसिटी, बट देयर इज अनदर कॉन्ट्राडिक्शन हियर. वी वांट टू बिकम अ मेजर क्लीन एनर्जी इकोनॉमी. हमें क्लीन एनर्जी चाहिए, हमें रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, बट द अपस्ट्रीम सोलर मैन्युफैक्चरिंग चेन रिमेन्स डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स. सोलर पावर मोदी जी ने कहा कि सभी के घर में चाहिए, ठीक है, लेकिन सोलर पैनल बनाने के लिए चाहिए पीवी, और वो पीवी के लिए हम जो हैं डिपेंडेंट है चाइना पे, उसके लिए हम डिपेंडेंट है दूसरे कंट्रीज पे. ग्रोथ तो बढ़िया हो रहा है, लेकिन वी आर हेविली डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज फॉर पॉलीसिलिकॉन दैट इज required for manufacturing of PV. We are required for manufacturing of wafers, for manufacturing of cells, for manufacturing of modules. This polysilicon is the basic thing that is required by any solar PV manufacturing companies. Right. So these are the problems. सब कुछ में कहीं ना कहीं हम दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट हैं ही, तो हमारा भाई ग्लोबल हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिशन कैसे हो पाएगा, वो तो लिमिटेड ही रह जाएगा ना. तो हमें इसमें भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, इसमें भी अपस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग करने की ज़रूरत है, और स्किल्ड वर्कफोर्स. अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब समझिए. डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग और अपस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग. डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग. देखिए, अपस्ट्रीम का मतलब सिंपल सा होता है कि आप प्रोड्यूस कीजिए रॉ मटेरियल, ठीक है, आप प्रोड्यूस कीजिए कंपोनेंट्स, आप प्रोड्यूस कीजिए इंटरमीडिएट आउटपुट्स जो भी रिक्वायर्ड है फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है. अब ये हुआ आपका अपस्ट्रीम, ठीक है. एंड दिस अपस्ट्रीम प्रोडक्ट्स इज रिक्वायर्ड बाय डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज. इसको छोटे से एग्जांपल से समझते हैं. हमारा मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से होता है. सबसे पहले रॉ मटेरियल. अब ये रॉ मटेरियल जो है अपस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग होगा, उसके बाद कंपोनेंट, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट, और फिर ये कंज्यूमर के पास चला जाएगा. तो जब भी इंडिया इंपोर्ट करेगा, सो व्हेन इंडिया इंपोर्ट्स पॉलीसिलिकॉन, वाफर्स, इवन इफ इट मैन्युफैक्चर्स सोलर पैनल डोमेस्टिकली, देयर इज स्टिल अपस्ट्रीम इंपोर्ट डिपेंडेंस, है ना. तो ये चीज़ को हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ मेंटेन रहेगा हमारे कंट्री में.
तो इसीलिए अपस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा सा हमें लिमिटेड रोल करना पड़ेगा, स्किल्ड वर्कफोर्स बनाने पड़ेंगे, स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमें मेंटेन रखना पड़ेगा. Now, there is a common message that is common from assembly to value chain. Earlier approach, produce, assemble, and sell. But now, this is a new approach. Research, design, components, produce components, manufacture, innovate, and then after export. ये सेल वेल नहीं है अब हमारा एम है एक्सपोर्ट करने का. So the core requirement is scale your business, technology, infrastructure, provide skills, research and development. On all these areas, we need to spend, we need to promote. What is the bigger picture? इसमें ये बिगर पिक्चर क्या है इसका, आप इस बात को समझिए कि जॉब्स बढ़ेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बढ़ने से, प्रोडक्टिविटी और एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़िया हो जाएगा, टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारा बढ़ेगा, और फाइनली हम लोग विकसित भारत बन जाएंगे 2047 तक. वाह, विकसित भारत बन गए, क्या दिक्कत है, कितना आसान लगा. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसकी रोल क्या, स्टेटस है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या रिजोल्यूशन है, नीति आयोग ने क्या रिकमेंड किया, और इसी तरीके से भैया आता है सवाल मेंस में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे बढ़ाएं, और ये आपका जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन है. तो प्रैक्टिस कीजिएगा, और जितनी भी जानकारी दी है ना, ये टू द पॉइंट जानकारी है, एकदम कंप्लीटली एग्जाम फोकस्ड. तो इस जानकारी को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लीजिए और रख लीजिए, ताकि आपका जो है प्रैक्टिस कर पाएँ. दिमाग इसमें ज़्यादा मत लगाइएगा, अगर दिमाग लगाइएगा तो वही आप बन जाइएगा रिसर्चर, रिसर्च करने बैठ जाइएगा. मैन्युफैक्चरिंग के पढ़ाने के लिए 500 किताब हैं अभी देश विदेश में, उससे भी ज़्यादा, देश में ही 500,000 किताब है, उससे भी ज़्यादा है. आपको यहाँ पर एग्ज़ाम निकालना है, और एग्ज़ाम निकालने के लिए यही है टू द पॉइंट. इससे आप कैसा भी मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन आ जाए, आप आराम से लिखेंगे, हंसते हंसते लिखेंगे, खुशी खुशी लिखेंगे, ये मेरी गारंटी है. बस सही से दिमाग को यूज़ करना आना चाहिए. अगर यूज़ ही नहीं कर पाएंगे तब तो फिर भगवान आपके मालिक हैं. ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को पढ़िए, लिखिए. दूसरी चीज़, अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ बढ़िया लगा, समझ में आया, तो फिर कमेंट में लिखिए कि समझ में आया. लाइक कीजिए हमारे लेक्चर को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का, मेरे प्यारे दोस्तों का हेल्प हो सके. और दूसरा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जो भी नए कॉन्सेप्ट्स हैं, नई जानकारियां हैं, वो मैं आपसे जुड़ करके आपको साझा करूंगा. और तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अच्छे से पढ़ाई कीजिए. चलिए.